राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। और यह बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, याद करिए 2 दिन पहले राहुल गांधी की प्रेस में आप लोगों ने एक सवाल पूछा था दिग्विजय सिंह के कमेंट पर, कपिल सिब्बल चिदंबरम के कमेंट पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो राहुल गांधी की अगुवाई में, राहुल गांधी के प्रोत्साहन में सेना के ऊपर अनावश्यक हमले किए जा रहे हैं। अच्छा है वो पाकिस्तान में खूब दिखेंगे, लेकिन भारत राष्ट्र ऐसे महान देश का एक आईन भी तो होता है ना, उसकी एक क्षमता, प्रतिभा, उसका एक आदर होता है ना। क्या ये सेना को कब तक आप इस तरह का पॉलिटिक्स का केंद्र बनाएंगे अपनी छोटी सियासत के लिए? चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां जीतेंगी हारेंगी, लेकिन देश रहेगा और देश की सेना रहेगी। और मैं हमेशा कहता हूं, देश के लिए जीते तो हम सब हैं, देश के लिए मरते हैं, शहीद होते हैं हमारे सेना और पैरामिलिट्री के लोग। अब क्या उनकी शहादत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं? तो हम इसका जबरदस्त प्रतिकार करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। और राहुल गांधी जी, अगर आप में कुछ शर्म बची है देश के लिए, तो अपने इन नेताओं पर आप कृपया करके नियंत्रण करें। दैट्स ऑल। I see a lot of sponsored comment happening today, notably from Mamta ji and some others, that in the whole election program, Ramzan is going to be affected. I would like to gently remind those leaders, don't be so desperate. Even Holi is coming in the election campaign. Even the Chat Naratra is coming in the election campaign program period. And for them, just to know that last year the Karana by-election took place during the Ramadan period itself. So also I am told the Nurpur by-election. So many elections have taken place. Yes, I can understand on the exact day of polling there should not be a festival. Therefore, this comment by itself is an indication of desperation of leaders who are fearing imminent defeat. I have heard that Congress party and their associates are also charging us for trying to weaken the institutions of India. Come on, who is saying that? Who unleashed a torrent of abuse against the Election Commission in the wake of EVMs? The Congress party and the associates. Who has refused to accept the verdict of the Supreme Court in the wake of Rafale? The Congress party and their associates, raising the same question again and again, which has been rejected by the Supreme Court. Who unleashed abuse on the CVC? The Congress party and their associates. The Congress, please look inwards as to how you all have been abusing recognized institutions of India. Those who do their bidding are okay. Those who don't are subject to abuse. That is what the Congress party is about. Lastly, this morning I have heard that Mr. Farooq Abdullah and some other leaders have again raised doubts about the surgical strike by the Air Force. No country in the world is asking evidence. They are believing India's story. The Air Force chief has said categorically it has happened. It was BJP senior leader. तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे दिल्ली से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेना पर अनावश्यक हमले किए जा रहे हैं और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सेना पूरी तरह से यहां पर उस पर हमले किए जा रहे हैं। हताश हो चुकी है चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी और शहादत पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी। ऐसे महान देश का एक आईन भी तो होता है ना, उसकी एक क्षमता, प्रतिभा, उसका एक आदर होता है ना। क्या ये सेना को कब तक आप इस तरह का पॉलिटिक्स का केंद्र बनाएंगे अपनी छोटी सियासत के लिए? चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां जीतेंगी हारेंगी, लेकिन देश रहेगा और देश की सेना रहेगी।
और मैं हमेशा कहता हूं, देश के लिए जीते तो हम सब हैं, देश के लिए मरते हैं, शहीद होते हैं हमारे सेना और पैरामिलिट्री के लोग। अब क्या उनकी शहादत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं? तो हम इसका जबरदस्त प्रतिकार करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। और राहुल गांधी जी, अगर आप में कुछ शर्म बची है देश के लिए, तो अपने इन नेताओं पर आप कृपया करके नियंत्रण करें। दैट्स ऑल। I see a lot of sponsored comment happening today, notably from Mamta ji and some others, that in the whole election program, Ramzan is going to be affected. I would like to gently remind those leaders, don't be so desperate. Even Holi is coming in the election campaign. Even the Chaith Naratra is coming in the election campaign program period. And for them, just तो राहुल गांधी पर सीधा हमला यहां पर रविशंकर प्रसाद का। राहुल गांधी जी, शर्म बची है तो सियासत को बंद किया जाए। राहुल गांधी अपने नेताओं को समझाएं किस तरह की उल जुलूल, गलत बयानबाजी और सेना के शौर्य पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, शहादत पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सियासत बंद करनी चाहिए। शर्म बची हो तो सियासत को बंद कर दो राहुल गांधी जी। अनावश्यक लगातार हमले हो रहे हैं और इसी देश में जिस तरीके से सेना के शौर्य पर सवाल उठाने के साथ साथ सबूत मांगे जा रहे हैं, और कहीं पर ऐसा नहीं होता, किसी भी देश में सबूत नहीं मांगे जाते, लेकिन यहां पर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए, तंज कसते हुए, शर्म बची है राहुल गांधी तो सियासत बंद करो। बड़ा हमला बीजेपी का, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के संरक्षण में, राहुल गांधी की शय पर उनकी पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी करते आ रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद से सबूतों पर सवाल उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहां पर एक बड़ा हमला। और साफ कहा कि अगर शर्म बची है तो अब तो सियासत बंद कर दो।